feel there's a big challenge. मैं आपके ही एक न्यूज़लेटर में पढ़ रहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉक्स इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ the major things in the world like screens and phones and automobile parts or like something like which is more technologically advanced. हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें, बट हमें एक्चुअली स्किल्ड लेबर चाहिए और वो मिसिंग है. एंड अगर वो नहीं आया तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी हमको बेनिफिट मिल रहा है China Plus 1 की वजह से वो भी हम खो देंगे. एंड दैट्स अ चैलेंज. ये आपके किसी न्यूज़ लेटर में पैराफ्रेज कर रहा हूँ. So you paraphrased it actually even better than I could have. So just quickly 3 challenges. पहला तो ये delimitation, right? So South India का जो prosperity है, that I think becomes a to some extent a double-edged sword, because at some stage in the next 10 years, at the moment it seems like 2026, but I'm sure there'll be some political kicking the can down the road. So as per the constitution, we need to figure out कितने seats, Lok Sabha seats, किस states को जाएंगे. So as at the moment, the South has 1/3 of the seats, but they're half the GDP. They pay half the taxes for the country, but they only account for 1/4 of the population. So जब वो फिर से जब वो redraw होगा किसको कितने सीट मिलेंगे, most likely South will end up with 1/4 of the seats in parliament. अभी 1/3 है, वो 1/4 हो जाएगा, बट उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आज आधी है, वो बढ़ती रहेगी, तो टैक्स उसी proportion पर देते रहेंगे. So I think there's going to be a standoff or a face-off at some stage, but the South will say, why will we pay the majority of the taxes if we account for only 1/4 of the seats in parliament, right? And I don't have an answer to how our leadership in Delhi will fix that issue. I think the second challenge जो बन रहा है is for a variety of reasons our education system is based on a lot of rote learning, right? And AI is rendering that irrelevant. And as a result, we're seeing very high unemployment amongst graduates. As it is, graduate employment itself was challenged historically. अब तो super challenged हो गया. अब तो super challenged हो गया है. So I think a rethinking is required फ्रॉम स्कूल, जहाँ से वो हमको रटाना शुरू करते हैं, थ्रू टू कॉलेज जहाँ पे रटते रहते हैं. बिकॉज इफ़ यू कैरी ऑन डूइंग रट्टोफिकेशन, देन AI और रोबोट्स पूरा का पूरा सारे जॉब्स ले जाएंगे. एंड तीसरा, आई थिंक एनवायरमेंटल चैलेंजेस. द समर्स आर गेटिंग hotter and hotter, water scarcity is getting more and more demanding. Food prices are naturally being pushed up by that. We are a poor country, $2,500 per capita income. And I'm not sure कोई political response मेरे को अब तक सुनने में आया है on how do we deal with the fact that water tables are falling, monsoons are becoming more erratic. पानी उतना ही गिर रहा है, but वो गर्मी की वजह से कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है. हाँ, तो हॉटर द समर द मोर वायलेंट द रेनफॉल, तो सीधा फ्लड में चले जाते हैं, तो उस पर क्रॉप्स तबाह हो जाती है, तो बारिश आती नहीं है, तो उससे सो द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आई थिंक on India seems to be already pretty remarkable, right? So the last 2 or 3 summers globally, last 2 years have been the hottest in human history. So जो second वाला था उसमें you said कि लोग ज़्यादा स्किल्स नहीं है, राइट? एंड एजुकेशन सिस्टम हमको प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, हमको रटाता है. हाँ. तो अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं चल पा रहे हैं इंडिया में? बिकॉज टेक्निकली देयर इज अ डिमांड, राइट? जॉब ज़्यादा जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड ग्रेजुएशन से कुछ हो नहीं रहा है. सो लवली पॉइंट्स. रिजल्ट मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राइट? तो मैं देखता रहता हूँ, ये मेरे को Naukri.com बहुत फैसिनेटिंग साइट लगती है. हम इन्फोएज के शेयर होल्डर्स भी हैं, बट मेरे को Naukri.com बहुत इंटरेस्ट है. तो मैं जाके गूगल करता रहता हूँ कि किस प्रकार के जॉब्स में अभी वैकेंसीज है. तो ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में बहुत वैकेंसीज है, करीबन 20-30 हज़ार वैकेंसीज, और पैसे खूब मिलते हैं. इफ़ यू डू 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपको साल में 1 करोड़ रुपए देता है, राइट? सो द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द क्वालकॉम्स ऑफ द वर्ल्ड आर हायरिंग देयर इंजीनियर्स इन इंडिया. वही इंडिया में बेस करके आप सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करते हो, तो पैसे ज़बरदस्त मिल रहे हैं, राइट? करोड़ आफ्टर ईयर इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट बैंकर सैलरी, फंड मैनेजर सैलरी इन अवेलेबल इन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन. सो यू थिंक भर के आबादी को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की तरफ जा रही है, बट नहीं, शॉर्टेज है. सो देन आई थॉट शॉर्टेज इसलिए कि कॉलेज में पढ़ाते नहीं है. बट देन आई वाज टोल्ड कि नहीं, देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज, अपस्किलिंग कोर्सेज, जहाँ पे 15-20 हज़ार में आप शिक्षा प्राप्त. इफ यू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एंड यू डू 15-20 हज़ार का कोर्स, फिर आपको
ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की जॉब मिल सकती है. सो आई कॉन्टैक्टेड दोज कंपनीज. कितने लोग कर रहे हैं? कोई बोलता है 1500, कोई 1000. आई थिंक बिजार यार, 20-30 हज़ार की वैकेंसी है, 1000, 1500, 2000 लोग ही कर रहे हैं कोर्सेज, राइट? दीज फेलोज ब्राइट पीपल हैव सेट अप दीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बट पढ़ नहीं रहे. So then I'm still trying to figure it out. My colleague Nandita and I are working on this. Why aren't people studying semiconductor design, doing these courses, getting these well-paid jobs, right? And we don't have the answer yet. My fear is that the education system makes you such a rectification ka guru that your brain stops doing the logical flow-throughs required for this sort of job. So semiconductor design is not a Rattu wala job. You can't just, you have to think through, अच्छा क्या राज को कैसा सेमीकंडक्टर चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी, क्या लिमिटेशंस है, उसके तहत कैसे मैं एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करके राज के लिए दे सकता हूँ. तो आपको within, you have to solve a problem within certain constraints, right? So is it the case that our education system doesn't impart those skills to even 20,000-30,000 people, which is the number of vacancies in this industry? या underlying पंगा क्या है? So we're still trying to get to the bottom of it, but it is perplexing that jobs where there is so much money available, there are skill deficits. And I deliberately took an extreme example, but ऐसे examples बहुत सारे हैं जहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, but free market में लोग अपस्किल करके आ नहीं रहे. हाँ, because and वो आ क्यों नहीं रहे? It's not a communication issue. Anybody can go to naukri.com and see ना vacancies कहाँ पे है. तो क्यों रह जाते हैं vacancies? क्यों साल पे साल रहते हैं? What is the challenge in the education system? We're trying to get to the bottom of it. Is there a cultural challenge in the way we train our young people? कि उनका लॉजिकल फ्लो थ्रू नहीं था, बस रटना सीख जाते हैं हम और वो एग्जाम बाजी सीख जाते हैं. यू फील कि हमको बचपन से क्योंकि रटाया हुआ सिखाया गया है, तो अब बड़े हो के हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग सीखें और करें, हम करते नहीं क्योंकि हम डरते हैं उससे. इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू इम्प्लाई? करते नहीं क्योंकि डरते हैं, पार्ट ऑफ इट है. बट दोज हु डरते नहीं है वो बोलते हैं यार आपको आता नहीं है, right? If so आता नहीं तो सीखो ना. That's like the obvious next but there is no book called Thinking 101 for Dummies. वो किताब मार्केट में अभी तक आई नहीं है मेरे ख्याल से. जब आ जाएगी तो वो किताब हम oh so you're saying कि अगर for example मेरे पास आज जॉब नहीं है, हाँ जी, मैं इंजीनियरिंग कर ली और फिर MBA भी कर लिया, दैट इज़ लाइक अ क्लासिक कॉम्बिनेशन इस कंट्री का. वो करने के बाद भी मुझे कोई 50,000 1 लाख की नौकरी नहीं देता, राइट? फिर मैं naukri.com पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ग्रोथ मार्केटिंग पे बहुत वैकेंसीज़ हैं, सोशल मीडिया के लिए बहुत वैकेंसीज़ हैं, सेमीकंडक्टर के लिए बहुत वैकेंसीज़ हैं, ग्रीन एनर्जी में बहुत वैकेंसीज़ है एग्जाम्पल. तो मैं इन सबसे दूर भाग देता हूँ कि मेरे को ये आता ही नहीं है, तो मैं कभी देखूँ भी नहीं, सोचूँ भी नहीं. हाँ जी. सो जस्ट टेकिंग मेरा पहला रिफ्लेक्स क्या है, मैं MBA कर रहा हूँ, वहाँ पे जो कॉलेज में जो लोग आएंगे भाड़ा करने के लिए, वहाँ पे मैं अपना माथा टेक दूंगा कि मालिक ले लो मेरे को, ठीक है. वहाँ नहीं हुआ तो फिर तो मैं हाथ पाँव मारूंगा इधर उधर. एंड अगर मैं naukri.com पे गया, आई एम नॉट गोना ट्राई टू डू सम डीप थिंकिंग अबाउट जो वैकेंसीज हैं उसमें से मेरे को सबसे भाता कौन सा है, उसके लिए कौन से 3 कोर्सेज में करके अपने आप को लायक बना सकूँ. आई एम गोना से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस चीज़ में है, एंड मैं वहाँ पे घुसने की कोशिश करूँगा, कुछ सिफारिश लगाने की कोशिश करूँगा, राइट? Now this aspect, right, it will solve itself over time. As I said, as the job market itself becomes different, tighter, new behaviors will emerge. But the entrepreneurial opportunity is in a way this discussion, right? कौन से entrepreneurs होंगे जो से हम help करेंगे बच्चों को फिगर आउट करने में कि देख जॉब्स यहाँ पे है, ये 3 कोर्स कर ले, तेरा ये जॉब का काबिल बन जाएगा, तेरे को पैसे बढ़ जाएंगे. हाँ बिल्कुल. पर बहुत डिफिकल्ट है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी दिखा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, बट स्टिल नहीं. आप सोचो अगर आपको आई अंडरस्टैंड कॉमन सेंस इज मेकिंग सेंस. हाँ, बट एक AI का बॉडी ट्रेन करना है जो लोगों के ऐप में आ जाएगा. आप ऐप में बोलोगे मेरी ये उम्र है, ये मेरी बैकग्राउंड है, ये मेरे इंटरेस्ट हैं, एंड द AI बॉट विल बी ट्रेन टू फिगर आउट कि राज को 2 कौन से ऑप्शन देने हैं. फिर उनमें से उसके बाद भी राज लेता ही नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो बट वो बॉट को ट्रेन ऐसे करना है कि कुछ ना कुछ वो एंड अप एज अ कमर्शियल, समबडी हु इज मनी माइंडेड विल डू दिस, नो. तो ऐसे करेगा, कुछ ना कुछ आप लोगे एंड फिर वो आपको कुछ सिखा के कुछ कोर्स वोर्स करा के आपसे कमाएगा. ही विल प्लग यू इनटू द एम्प्लॉयर, एंड वो एम्प्लॉयर भी पीछे होंगे, वो भी अपना ऐप उसी ऐप में बोलेंगे हमको ये 50 लोग चाहिए. तो वो बॉट एग्रीगेट करेगा
all the needs, and these could be gig needs. Some company might need an electrician only for 30 days, but the bot will aggregate that. And just imagine, right, जो चलाएगा ये bot, it's like Naukri, it's naukri.com but with AI and a training element, and perhaps घर भी दिला देगा, मतलब कमरा भी दिला देगा बैंगलोर या चेन्नई में. अपने लैंग्वेज का मुद्दा छेड़ा, राइट? सो यू नो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच विल रिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न इंडियन फ्रॉम गोइंग टू चेन्नई इज तमिल लैंग्वेज, बट वो बॉट वो लैंग्वेज का मुद्दा भी सॉल्व कर देगा. सो आई हैव इन्वेस्टेड इन अ स्टार्टअप व्हिच डज एडटेक प्राइमरीली, और मैं उनके साथ समझ रहा था, डेटा समझने की कोशिश कर रहा था किस पे, कौन सी ऐड पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, राइट? जब वो ऐड चलाते हैं कि ये वाली स्किल सीख लो, इससे बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं मार्केट पे, तो उस पर X क्लिक आते हैं. फिर वो दूसरी ऐड चलाते हैं कि इतने पैसे कमाओगे अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो. क्लियर आउटकम दिखा देते हो, राइट? तो उस पर ज़्यादा 2x क्लिक्स ज़्यादा आते हैं. सो देयर इज़ एन आउटकम बेस्ड, द होल मार्केट इज़ वेरी 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 आउटकम बेस्ड. अपस्किलिंग बेस्ड कुछ भी नहीं है, आउटकम पे ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है? और मैं उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग बताता हूँ. 3x ज़्यादा क्लिक्स किस पे आते हैं? जिसमें बोलते हैं कि ये करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. सो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी सर्टिफिकेट की वैल्यू. एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज शोइंग, एंड दिस ऑलमोस्ट एवरी एडटेक पर्सन विल अग्री विथ मी कि जब वो प्रॉमिस करते हैं कि इस कोर्स के बाद एंड में सर्टिफिकेट मिलेगा, एवरीबडी इज हैप्पी. So देखो, I mean, I'm sure as you're, you know, as investors like you and entrepreneurs, whoever you've invested in, people are solving for it. मेरे ख्याल से इंडिया का entrepreneurial ecosystem इसको solve करेगा. As I said, core challenge is socialist education system in a capitalist economy. तो capitalist education system in a capitalist economy, I think बैठेगा. So much ये episode end तक देखने के लिए आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है. Number 1, अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट. नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.